Okay, yes, hello mate, welcome on Europedia platform, and let's start your snap mock for thermodynamics. As you mentioned, you are preparing for Bihar Public Service Commission. I think some lecturer position Yes, yes, they announced, and I think you are getting called for interview for the lecturer yes, sir. position through BPSC. Yes, So, yes. please tell me brief about you. First of all, sir, I did my BTech in 2016 from Gandhi PTU campus, India, Punjab. After that, I did my MTech from MIT Muzaffarpur, Bihar. After that, from 2020, I am pursuing PhD from IIT VHU. So you are doing PhD. Yes, sir. Then why you are going for a lecturer position? Why not assistant professor? Yes, sir. I have also given the exam of assistant professor, but I haven't. In final selection, I have gotten. But you But appeared for the interview also. You appeared for yes, sir. assistant professor interview. Yes, sir. Yes, sir. So what do you think? What are the reason actually why you are Interview, sir. got the final call? So interview marks due to the Interview marks. less number in interview. So now you worked on that kind of weakness. What Sure, sir. changes you feel you made in yourself after getting the results of assistant professor? What's the tell again? What kind of changes you made in yourself? First of all, I have to change in my. मतलब sir, can I speak in English? Yes, yes. या सर ये जब हमने इंटरव्यू फेस किया सर तो हमें मुझे ये लगा कि उसमें बहुत हमारे में वीकनेस इंटरव्यू के उसके तो मुझे लगा कि हमारे दोस्त एक है सर उत्तम कुमार, हम दोनों ने साथ बीटेक किया हुआ था, उसका कल इंटरव्यू भी अपलोड हुआ है सर। तो उन्होंने ये बताया कि योरपीडिया में इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू, उसको ज्वाइन करो तो इंटरव्यू बेटर होगा। और मुझे मैं परिस्थिति में उत्तम आपका फ्रेंड है। उत्तम हाँ ने सर, तो हम बहुत दोनों स्नैप दिया है। आई थिंक उत्तम अपीयर्ड फॉर मोर देन 30-40 स्नैप्स। या सर मेरे वो साथ भी हम उसने मेरे दोनों ख्याल से कोई 7-8 स्नैप तो कम से कम लगाए होंगे उसने। हाँ गुड। सर। तो चलिए, तो मतलब आपको मोटिवेशन तो अच्छा मिल गया अपने फ्रेंड से। तो अभी आप मेरे को ये बताओ, व्हाट आर योर टेक्निकल स्ट्रेंथ्स? अमित अमित सर आई एम गुड इन थर्मल पार्ट सर। तो पीएचडी यू आर डूइंग इन व्हिच एरिया? So in thermal, sir. Thermal. Yes, sir. Tell me brief about your PhD research work, Amit. Yeah. Sir, gasification of torrefied biomass integrated with CH3, combined heat and power. So what do you understand by energy? Energy, the capacity to do work, sir. Capacity to do work. Yeah. अच्छा, एनर्जी के कुछ फॉर्म्स बता सकते हो मेरे को? व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द व्हाट यू कैन से internal energy, and there is some energy in transit. What's the difference between internal energy and energy in transit? So energy is generally divided into two parts. First is transient form of energy, and another one is stored form of energy. In transient form of energy, work and heat are the transient form of energy, and stored form of energy are internal energy, kinetic energy, potential energy, sensible, and also in stored form energy is also divided into two parts: microscopic and macroscopic. And in microscopic, we are studied about the internal energy, and in macroscopic, we are studied about kinetic and potential energy. अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या समझते हो? Conservation of energy मतलब सर energy is conserved, energy can't be created, can't be destroyed. तो कुछ एग्जांपल दे सकते हो? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए मोटर। Yeah, sir. इलेक्ट्रिक मोटर घरों में होती है ना, मोटर पंप असेंबली वी यूज टू लिफ्ट द वाटर। Yeah, sir. तो उस असेंबली के लिए, मोटर और पंप की असेंबली के लिए, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाउ यू आर गोइंग टू राइट द एनर्जी बैलेंस? Yeah, sir. First of all, sir, as we know that according to first law of thermodynamics for a process, that is del Q equal to del U plus del W. Okay, sir. And work, there is a work transfer. We know that the due to the electrostatic potential, there will be a work transfer, and this work transfer is further converted into the yes, sir.
I think there, sir, this work transfer is there. just take the pump assembly and motor assembly as the system. Yeah. पंप Sir, और जो here- मोटर असेंबली है ना, collectively you can take it as a system. अब मेरे को ये बताओ Yeah. इनपुट क्या है, what is entering, what kind of energies are entering into the pump The assembly? electric energy as in the form of work transfer. So del W is, sir, equal to del U. Electric energy is entering, fine. What you are getting? The internal energy. अच्छा, इस जो असेंबली है इसका एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? अमित, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो. Yes, sir. Hello. हेलो. sir. आपका वीडियो पॉज हो गया अमित, ख्याल से कुछ इंटरनेट इशू है. जी सर, कॉलेज का वाईफाई इंटरनेट अभी ठीक है, अभी ठीक है. ओ, अच्छा, मेरे को ये बताओ एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ये जो पंप और मोटर का असेंबली है इसका एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, यू हर्ड अबाउट फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एफिशिएंसी, सुना आपने? यस सर. बताओ मेरे को डिफरेंस बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एफिशिएंसी? फर्स्ट लॉ इज सिंपली सर नेटवर्क बाय हीट सप्लाई. ठीक है. एंड सेकंड लॉ इज एक्चुअल मैक्सिमम वर्क बाय मैक्सिमम पॉसिबल वर्क. गुड. तो बताओ ये फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ये जो असेंबली हमने लिया ना पंप और मोटर का, for this assembly how you will find out the first law efficiency? So there I am confused right now. And what about second law efficiency? क्या निकाल सकते हैं इसका second law efficiency? मैं इस पे कभी कुछ कहना नहीं चाहता. चलिए कोई बात नहीं. मेरे को बताओ एंथैल्पी क्या होता है? What is enthalpy? Sir, enthalpy is a yes sir, that amount of total heat content at a particular state, a particular system is known as enthalpy, or in other words we can say that is the summation of the internal energy and the flow work. Internal energy plus flow. What is that flow work? Flow work, sir, minimum energy required to flow the fluid is known as flow work. ठीक है. आप बताओ मेरे को रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या समझते हैं आप अमित? And why in real life reversible processes are not possible? Yeah. सर रिवर्सल प्रोसेस ये है कि सर जैसे कि मान लिया जाए एक स्टेट है A1 और 2, दूसरा स्टेट 2 है, एक प्रोसेस के थ्रू गया है सर. तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस ये कहता है कि सर अगर हम स्टेट 1 से 2 जाते हैं और इन रिवर्स डायरेक्शन हम 2 से फिर 1 आ जाते हैं विदाउट चेंजिंग और गेनिंग, without gaining or leaving any change in the system and surrounding is known as a reversible process. And why these kind of processes are not possible? Because ये सर hypothetical है, ये रियल आइडियल कंडीशन जिस तरह होता है वो पॉसिबल ऐसा नहीं है कि सर हम 1 से 2 प्रोसेस जा रहे हैं उसमें कुछ लॉसेस नहीं होंगे, ऐसी पॉसिबल नहीं है. नहीं, हाइपोथेटिकल हैं बिकॉज दे आर नॉट पॉसिबल. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम लोग ये कैल्विन ये what exactly which particular thing is causing the irreversibility in system and surrounding or between system and surrounding? many free expansion, throttling, good, or heat interaction due to the finite temperature difference. ठीक है. मेरा लास्ट क्वेश्चन अमित आपसे, आपने वंडरवाल्स इक्वेशन सुना है? हाँ सर, नाम तो सुना है. तो मेरे को डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वंडरवाल्स इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन? यस. आइडियल गैस तो सिंपली हो गया सर Pv इक्वल टू mRT और nRT सर. उसके बाद से वंडरवाल हो गया P माइनस तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा है, मुझे जैसा याद आ रहा है सर वंडरवाल. अच्छा वैसे बताओ वंडरवाल इक्वेशंस का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इक्वेशन?
सर क्योंकि सर आइडियल कंडीशन में हम लोग ये मानते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर ये हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन नहीं हो सकता है। ऐसा क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं कि वहाँ पे एंट्रोपी जीरो, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है वो जो पीवी इक्वल टू एमआरटी आइडियल केस के कंडीशन में लगाते हैं, और ये जो है रियल कंडीशन में जो होता है उसमें हम वंडर वाल की स्टडी करते हैं। चलो मेरा एक और लास्ट मतलब में कोई एक बात चीज नहीं। और है कि सर इसमें मतलब हाँ सिंप्लीफाइड करने के लिए ये जो भी हम स्टडी को सिंप्लीफाइड करने के लिए आइडियल पे कंडीशन करते हैं, और ये जो वंडर वाल है कि मतलब कि जो रियल है उसी कंडीशन में हम इसकी स्टडी करते हैं। my last question to you, Amit, what is the entropy generation and what is second law of thermodynamics, or what you can say, there is some principle also, principle of increase in entropy of universe. What is that? Yeah. Sir, it will, yeah, principle. So entropy of the universe is always going to be increased or remains constant. Is for entropy principle. होता क्या है एंट्रोपी जनरेशन से, क्या समझते हैं? व्हाट इज एंट्रोपी जनरेशन? Sir, entropy generation is a part of entropy, which is due to the internal irreversibility in the system. नहीं है क्या एंट्रोपी जनरेशन? एंट्रोपी तो है, ठीक है, किसका हाँ, एंट्रोपी है? सिस्टम का एंट्रोपी है, सराउंडिंग का एंट्रोपी है, और किसका है? व्हाई वी आर सेइंग एंट्रोपी जनरेशन? Entropy generation universe का ही है सर, क्योंकि हम डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू entropy generation. चलो ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का. ठीक है अमित, मैं अभी आपको फीडबैक देता हूँ, ठीक है? अभी पहला स्नैप है आपका, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको। डन। ओके अभी आप प्रैक्टिस करो आपका। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पहला स्नैप है ना, मेरे याद है जब उत्तम ने पहला स्नैप दिया था तो आपने बेहतर दिया है, चाहे आप उत्तम को बोल देना। देखो होता क्या है, मेहनत काम करती है, वो बहुत मेहनत किया उसने, उत्तम लगातार लगा रहा, उसने बहुत मेहनत किया, ही अपीयर्ड फॉर सो मेनी स्नैप्स और एफर्ट्स पुट करता रहा, वो मैटर करता है। तो व्हाट आई कैन से, आपकी स्टार्ट अच्छी है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, थोड़ा सा और सब्जेक्ट को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, इंटरेक्ट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फाइनली इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस मैटर करता है। देखो दे नो योर ऑल टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बिकॉज आपने रिटर्न क्रैक किया है, तो उनको इतना पता है कि आप टेक्निकली साउंड हो। व्हाट दे आर गोइंग टू चेक एक्चुअली इन द इंटरव्यू, योर अंडरस्टैंडिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कितना कंफर्टेबल होके आप डिलीवर कर रहे हो। अब कल को क्लास में आप लेक्चर लेने चले गए और बच्चों ने क्वेश्चन पूछ दिया और आप कंफ्यूज हो गए वहां पे, तो फिर वो क्या कहेंगे, यार क्या इन्होंने प्रोफेसर हमें चूज करके दिए, सेलेक्ट करके दिए, यार गेटिंग। तो इतना कॉन्फिडेंट हो बच्चा कि हाँ, अगर एक टाइम नहीं भी आता ना तो स्ट्रांगली कहे कि सॉरी गाइस, दिस टाइम आई एम अनएबल टू रिकॉल, मैं कल पढ़ के आपको कल बताऊंगा, आज पढ़ के शाम को कल बताऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस उनको चाहिए कि हाँ यार, आप में हिम्मत हो उनको फेस करने की, आप वहां पे डरे नहीं, हिचकिचाए ना। तो अगर वैसा अगर बच्चा प्रेजेंट कर पाता है ना तो सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छा स्टार्ट किया है, यू आर लुकिंग कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, और मेहनत करोगे तो श्योरली यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस इंटरव्यू। पोटेंशियल है आप में। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखो मैंने पूछा कि थर्मो, आप चलो कुछ जनरल क्वेश्चन थे आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, just to link actually why you want to why you are preparing actually this subject. अब देखो अप्लाई आपको करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली इट्स फाइन कि सर एनर्जी बैलेंस मतलब क्या है, कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। अब उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। कैन आस्क यू टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन फैन, सीलिंग फैन, लाइट बल्ब, गैस बर्नर, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और मोटर। तो एप्लीकेशन तो कहीं भी हो सकता है ना फर्स्ट लॉ का। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। अब देखो लेट मी कंसीडर केस ऑफ दैट असेंबली, पंप एंड मोटर असेंबली। तो इनपुट क्या है उसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं dq इक्वल टू du प्लस dw, अब dq क्या है, यहाँ पे कोई हीट हम दे रहे हैं, देयर इज नो हीट एडिशन बट हीट लॉस्ट हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन इन दी वेरियस पार्ट्स ऑफ मोटर एंड पंप, कुछ ना कुछ तो हीट हम लॉस करेंगे। आर यू गेटिंग अमित? और आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू एट योर एंड। No, sir. I am getting. अमित आप अपने एक काम करो, वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, वीडियो टर्न ऑफ कर दो, फिर आप हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं तो वीडियो टर्न ऑफ कर देना, फिर मेरी साउंड आपको क्लियर आएगी। देखो तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू लोस्ट दैट इज इक्वल टू
DE, ओके, yes sir, yes. प्लस DW। अब वहां पर W क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क जो हम प्रोवाइड क्या कर हमें रहे कुछ हैं। फाइनली वर्क मिल रहा है क्या? नो। अगर हम पूरा हम्म, असेंबली को कंसीडर, अगर मोटर को कंसीडर करोगे, इफ यू आर कंसीडरिंग मोटर ओनली एज ए सिस्टम, तो मोटर इज yeah, गोइंग टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो तब तो वर्क अच्छा, मिलेगा। बट इफ यू आर कंसीडरिंग एंटायर अरेंजमेंट पंप एंड मोटर एज ए सिस्टम, तो वर्क हम दे ही रहे हैं। वो वर्क क्या है आपका? इलेक्ट्रिक वर्क माइनस WE। ओके, yeah, तो इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो DE क्या हो जाएगा? D इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल माइनस Q लोस्ट। yeah sir. मतलब चेंज इन एनर्जी किसका? मोटर का, मोटर पंप, मोटर अब का देखो sir. इसमें नहीं, इसमें देखो दो चीजें हैं। अभी हम जब हम बात कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिकल, अब इसमें हम हमारा आ क्या रहा है, हम इसमें बिकॉज पंप और असेंबली में वो आपका फ्लूइड भी तो एंटर कर रहा है, सो आई एम राइटिंग इट फॉर व्हाट, ओपन सिस्टम। yeah तो sir. DE चेंज इन एनर्जी में क्या आएगा आपका? आपको इफ यू कंसीडर इट एज ए काइंड ऑफ व्हाट, द फ्लूइड, जो फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है, तो उसका एनर्जी तो चेंज होगा ना। yes sir. तो उसमें आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा फॉर ए काइंड ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। तो जितना उसका एनर्जी रेज हो रहा है फ्लूइड का, yes sir. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, W इलेक्ट्रिकल माइनस Q लोस्ट। W इलेक्ट्रिकल जितना इलेक्ट्रिकल वर्क हमने दिया, Q लोस्ट जो हीट लोस्ट हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेज इन एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। अब अगर असेंबली को, मोटर को अगर आप एज ए सिस्टम मानते हो, तो फिर आपको एनर्जी इनमें भी क्या लिखना पड़ेगा? हीट अंदर अंदर आ रहा है, तो फिर आपको एनर्जी इनमें भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी अंदर एंटर करेगा किसकी फॉर्म में? फ्लूइड की फॉर्म में। ओके, yes तो फिर वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अदरवाइज यू कैन यूज स्टडी फ्लू एनर्जी इक्वेशन। आप चाहो तो इसको स्टडी फ्लू एनर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हो, बिकॉज पंप एंड मोटर असेंबली कलेक्टिवली यू कैन कंसीडर इट एज ए स्टडी फ्लो डिवाइस। पंप तो yes आपका sir, स्टडी yes फ्लो डिवाइस होता है, तो यू कैन yes sir. यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टू राइट द एनर्जी बैलेंस फॉर दैट सिस्टम, और यू कैन यूज DK इक्वल टू DE प्लस DW ऑल्सो। अरे yes हमें, sir, yes sir, yes sir, sure. तो फिर आपको सोचना है कि क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, अगर मोटर okay, खाली को सिस्टम मानोगे, तो मोटर के लिए देन दो वर्क आ जाएंगे। वन इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल वर्क विच यू आर गिविंग, एंड सेकंड इज द मैकेनिकल वर्क विच यू आर गोइंग टू गेट। yes sir, yes, sure. ठीक है। और सिमिलरली पंप, अगर खाली पंप को सिस्टम मानोगे, तो पंप में वर्क क्या होगा? मैकेनिकल वर्क हम दे रहे हैं, और आउटपुट क्या मिलेगी आपको? रेज इन एनर्जी, रेज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। yes sir. चलिए, तो अप्लाई करना है दिमाग को, और अकॉर्डिंगली यू नीड टू रीच टू द सोल्यूशन। Sure sir, sure. फर्स्ट लो एफिशिएंसी क्या होगी असेंबली के लिए? देखो, जितना फ्लूइड का एनर्जी रेज किया, वो क्या है आपका? असेंबली में आप इनपुट क्या दे रहे हो? इनपुट क्या आपका, जो वर्क आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने दे दी। ओके, yes sir, yes आउटपुट sir. में क्या मिल रहा है? जितना फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी आपने रेज कर दिया। तो मान लीजिए नीचे आपके पास कोई 10 15 20 लीटर ऑफ पानी था, और उस पानी को आपने क्या कर दिया? यू रेज्ड इट एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी रेज किया, वो क्या आपका आउटपुट? तो आउटपुट रेज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल वर्क, वो क्या होगा आपका? Yeah, input sir. एफिशिएंसी, दैट विल बी द एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट। आर गेटिंग सम Yeah, आइडिया में? yes sir, yes sir. हाँ, तो रेज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल वर्क, दैट इज द फर्स्ट लो एफिशिएंसी। सेकंड लो एफिशिएंसी क्या होगी? दिस इज आल्सो नोन एज एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी। सो दैट विल बी द वर्क लॉस्ट। कितना वर्क हमने लॉस किया, कितना वर्क हमने लॉस कर दिया? जो सर ये हीट लॉस जितना हुआ है, जो यस जितना हीट लॉस हो रहा है, बिकॉज ये सारा का सारा वर्क हमने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। डिवाइड हाँ बाय सर, व्हाट, जो वर्क पोटेंशियल हम दे रहे हैं। तो या सर, एक्सर्जी लॉस्ट जो आपने किया, या एक्सर्जी यूटिलाइज्ड बाय एक्सर्जी इन्वेस्टेड, दैट इज नोन एज सेकंड लो एफिशिएंसी। या सर, एक्सर्जी यूटिलाइज्ड बाय एक्सर्जी इन्वेस्टेड, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस इरिवर्सिबिलिटी बाय एक्सर्जी इन्वेस्टेड। तो सेकंड लो एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस क्यू लोस्ट, 1 माइनस क्यू लोस्ट, बिकॉज क्यू लोस्ट इज द इरिवर्सिबिलिटी। 1 माइनस क्यू लोस्ट डिवाइड बाय एक्सर्जी जो आपने दिया। कितना एक्सर्जी या दिया? दैट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, बिकॉज जितना वर्क आप दे रहे हो इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, दैट एंटायर इज द एक्सर्जी इनपुट। यस, आर यस गेटिंग? सर, यस सर, चलिए, तो बाकी आपने रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक बताया। देयर आर सम रीजंस, यू नो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होती है फ्रिक्शन की वजह से,
Sir, we yeah, cannot sir. make a frictionless process. It is very difficult to have a frictionless process in real practice. Yes, And yes. sir, in real case, when we add heat or when we reject heat, the heat addition or rejection at a constant temperature is impossible, because always heat transfer takes place due to the temperature difference. And without the temperature difference, heat transfer will be very, very slow. So if we want to have a process in which heat transfer will takes place at a constant temperature, so sir, that process is going to take infinite amount of time. So actually there Yeah, is sir. no logic of developing such kind of process which is taking infinite amount of time to takes place. So in that Yes, case, the yes. engine which will develop, that will be a very slow engine. So Oh, that's why that's a why, reversible sir. engine, reversible processes are Yeah, not possible. All real that, processes, because real process heat addition rejection takes place with the finite temperature difference, and due to that finite temperature difference, always there will be external irreversibility. yes. Fine. That's why, sir, Carnot is internal Yes, as well as externally बिल्कुल बिल्कुल. reversible. उससे अलग Yes, sir. आपने जो 2 पॉइंट बताए, थ्रोटलिंग है या आपका फ्री एक्सपेंशन है, उसकी वजह से भी आपका इरिवर्सिबिलिटी आती है. Yeah, yes, sir. Sure. चलिए, तो कुछ मैं आपको जो मैं रिकॉल कर पाया, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, आई डिस्कस विद यू. फर्दर इफ यू फील अमित और यू फेस एनी क्वेरी डाउट, यू कैन शूट योर क्वेरी थ्रू व्हाट्सएप और कॉल. ठीक है अमित? Okay, sir. Okay, sir. गुड लक, Thank you. कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you. इंटरव्यू. Thank you, sir. Thanks a lot.